So what? Look here, bete. So we are now today concentrating fast on various aspects. Fine. Everybody, please be ready with the notebook and pen and your assignment also. Notebook, pen, assignment. Please be ready. Good morning, sir. Good morning, Betty. Good morning. Now the 8th B students are also very much visible to me. Very nice. Another section, 8th C have is waiting to join. Yes, they have also joined 8th C. Well, Betty. Camera of 8th B. Yes, now it is okay. Now it is. Showers. Good job. 8th C students, please pull out your notebooks. Assignment pens, bete. Nobody is ready presently. Hurry up, hurry up. Write down the heading. Write down the heading. Well, bete, listen very attentively. First of all, I will do something for you on the board. I will make some basics. Then we will go to the assignment. Again, some basics. Go to the assignment. And in between, I will try my best to show the activities on my table also. So everybody should be very much attentive. Okay? Listen, bete. I am telling only the main points. Listen here. This is, I have taken some reflecting surface. Reflecting surface. Now question arises, how this reflecting surface can be? It can be of two types. Very, very smooth and lesser smooth. Like very smooth means like mirror. Lesser smooth means like tabletop. Okay? Now listen better. In case we take very smooth surface, what we observe, the parallel beam of light is incident on the very smooth surface. Parallel. Let me draw once again. This is your parallel beam of light. After getting reflected, it again remains the parallel beam. Look here. This is your parallel beam. This is your parallel beam. So this happens in case the reflecting surface is very smooth and it is known as regular reflection. Regular reflection. Fine, bete? Yes. Next, in case the surface is not very much smooth, it is lesser smooth. Then in case the incident ray will be parallel beam, but after reflection, it will no more remain as parallel beam. Some part will go to this side, some to this side, some to this side, some to this side. That means they are scattered into different direction.
Such a reflection is called diffused reflection. Diffused reflection, or you can say irregular reflection. Irregular. Meaning is incident light beam is parallel beam. Parallel beam, this is your not parallel beam. Not parallel beam. Okay? Here it is parallel beam. Now question arises, what is the use of this reflection and what is the use of this reflection? Listen, in practical life, when we talk about the use, this is useful for image viewing. Image viewing. That means, listen here, that means in case I have the mirror and I am looking into it, I can see my image into it, right? So how can I see the image into it? It is very much smooth. That is why I can see my image into the mirror. But in case the surface is not smooth, then this kind of reflection is useful to read the text. To read the text. For example, I have this piece of paper. It is smooth to touch to my hand, but not as much smooth as the mirror. So therefore, if I look into this, I can read what is written, but I cannot see my image of my face into it. Whereas in case of mirror, it was very much smooth to touch and I can see my image into the mirror. So that is the example of regular reflection. Whereas this is the example of irregular reflection. Now question arises, how it happens? Look, that is the source of light. From the source of light, the parallel beam of light is falling on the paper, and on the paper, when light gets reflected, some part goes to this side, some part goes to this side, because light gets scattered, diffused. Only a small portion goes into my light eyes. When very small portion, देखो ह्यूमन साइज आईज का साइज तो बहुत छोटा होएगा ना, तो उसमें बहुत स्मॉल लाइट जाएगी, बाकी तो साइडों से निकल जाएगी. When very small light after reflection enters the human eye, then human can only view the objects, or at the most can read the text, what is printed, what is written on the paper. Whereas when whole light, larger light is entering into the human eye, then human eye can see the image of the person, as I was showing in the mirror case. So always remember, regular reflection is for the image viewing. Diffused reflection is for the reading of text as well as viewing the objects. Viewing the objects. अगर मेरे को लग रहा है, look here, अगर मेरे को लग रहा है this is your remote, ये मेरे को क्यों दिखाई दे रहा है? Light is falling on the remote surface. This is not the smooth surface, rough surface. A very small portion of the reflected light enters into my eyes. When small portion of the light enters, then I can see the object. Not very much light is coming into my eyes. When full parallel beam of light enters, in case of mirror, then I will see the image. This is your mirror. I can see the image of this object. Like this is the toy. So you can see toy as well as its image. Both are visible in the mirror as well as actual object. Why? Because it is very much clean surface. Parallel beam of light on it and parallel enters into the human eye. That is why it is possible. Okay? Yes, sir. So this was first learning point. Now let's move to the second learning point. That is again important. ध्यान से सुनना. आपको लगता है कि आपको रिफ्लेक्शन आता है. When you will listen attentively, आप कहोगे सर इतना तो हमें नहीं आता. Listen. Look, this is your, I have taken mirror.
Fine, bete. Suppose this is your source of light, right? And from the source of light, incident ray is coming and it is falling at this point P. Do you know what is S known as? Source of light. What is P? Point of incidence. Point of incidence. And what stands for IR? This ray, it is called incident ray. Incident ray. So terminology should be very much clear. If I ask my students, had there been no mirror, where would have this ray of light gone? So you all will answer, sir, in that situation, this ray would have gone to this direction. Straight line. Because of which property? Light ray always travels in the straight line, and that you know, the rectilinear propagation of light. But what happens at this point? We draw a line. It is called normal. Why called normal? Because this is 90-degree angle. You can also call it perpendicular. Perpendicular. Okay. So remember, bache, one important thing. This particular angle which the incident ray makes with the normal is called incident ray. Is angle of incidence. Angle of incidence. Okay, one angle. I will tell you many other angles also. Remember, this incident ray is making some angle with the mirror, with the smooth surface. This angle is known as angle of glance. Angle of glance. Right? So it has been found that incident ray after reflection goes to this direction. Right? This is called reflected ray. Reflected ray. RR stands for reflected ray. Okay. How much angle the reflected ray has made with the normal? This double angle is known as angle of reflection. Angle of reflection, which is found to be equal to angle of incidence. One important thing, if I ask my students, the ray was supposed to go in the dotted direction, dotted points direction, but with the help of mirror, it has gone to actually this way. So by how much angle the ray of light has deviated? So you will say, sir, this green angle shows the magnitude of deviation. Deviation का मतलब मुड़ जाना, कितने एंगल से मुड़ गया. So expected path in the absence of mirror and actual reflected ray direction. This particular angle is known as D. D stands for angle of deviation. Angle of deviation. Okay. Always remember this formula. Number one. Number two, angle of incidence and angle of glance. The total of that becomes 90-degree. Second formula. Third one, angle of deviation is always double of angle of glance. Angle of deviation is always double of glance. सभी बच्चे ये तीन बॉक्सें नोट कर लें, 1, 2 और 3. डी को क्या बोला टीचर ने? एंगल ऑफ डेविएशन. सो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कम से कम. ठीक है, सभी बच्चे नोट कर ले, कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो आपने नोट ना किया. राइट बेटा. अब इसको भी हम मेमोरी में डालते हैं. आपको YouTube पे जाके रिवाइज भी करना है ये लेक्चर. अब हम असाइनमेंट पे आते हैं. शाबाश. असाइनमेंट पे व्हाट यू सी इन द असाइनमेंट?
while hiking, Arav shines a torch on a rough rock surface. Sir, we didn't get the assignment. No assignment with you? Okay, After some white we ओके मैं अभी ऑफिशियली ऑर्डर निकलवाता हूँ, आपको क्लास में पहुंच जाएगी, लेकिन बाय दैट टाइम मैं आपको बोर्ड पे ही क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है? okay. ओके बेटे, तो विद इन 5 minutes असाइनमेंट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर क्लास एज दे से। सो बच्चे, हमें वो बोलता है कि देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज आरव, राइट? सो आरव इज गोइंग and there is a torch in the hand of the Arav. What is holding? Torch. Is on the torch, and the light falls on a particular rock. Light falls on the particular rock, and he says, when a light falls on the rock at the time of night, he observes light spreads in all directions. तो उसने यहाँ से लाइट थ्रो करा बेटे, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट का इधर चला गया लाइट, थोड़ा बहुत इधर भी गया। नाउ ही हम इतना बोलने के बाद ही सेज व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स. सेकंड ऑप्शन, irregular reflection occurs. Third option, rock absorbs light. So what is the correct option? Parallel beam of light after reflection no more remains as a parallel beam, rather it is reflected in different directions. So this is an example of diffused reflection, or you can say irregular reflection. Okay, so this was your first question. जब भी असाइनमेंट आएगी आपको पता लग जाएगा. we have got the assignment. हाँ जी बेटे, आ जाएगी. मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन समझा भी दिया और उसका आंसर भी बता दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन बी बनेगी, बी ऑप्शन. ओके, जब आएगी तो आपको पता लग जाएगा सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, you see your reflection clearly in a mountain stream only when water is still. ओके, ध्यान से सुनो क्या कहता है. कह रहा है कि ये आप किसी माउंटेन्स के पास गए तो आपने क्या देखा, वहां से एक रिवर निकल रही थी, रिवर, और रिवर का पानी बिल्कुल स्मूथ जा रहा था, बिल्कुल स्मूथ. और जब पानी बिल्कुल स्मूथ जाए तब वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, ट्रांसपेरेंट. ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ वाटर, स्ट्रीमलाइंड फ्लो ऑफ क्लीन वाटर. और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाती है बेटे, ठीक है? अब वो बोलता है कि यहाँ पर एक लड़का आकर खड़ा हो गया और उस लड़के को पानी के अंदर अपना इमेज दिखने लगा, उस लड़के को पानी के अंदर अपना इमेज दिखता है. तो ये कौन सी रिफ्लेक्शन है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था इमेज व्यूइंग के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जरूरी है. तो दिस इज एन एग्जांपल दैट चाइल्ड इज टू सी the image in the water flowing. Okay, this is an example of regular reflection. तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसका ऑप्शन आएगा आपका सी पार्ट. तो आप कहोगे ये बिल्कुल एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है. उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए. जिन बच्चों को ये दोनों समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड. शाबाश. 8th C के बच्चों को मैं पूछना चाहता हूं, 8th B के बच्चे गिव द इंडिकेशन.
गिव द इंडिकेशन। अगर आपको समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। 8th सी के बच्चे मेरे जवाब नहीं दे रहे बेटे। हाँ गुड। और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि 3 में से 2 सेक्शंस को तो असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो भी चुकी है। गुड जॉब। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन बेटे, इसको हम मेमोरी में पुट करते हैं। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a student shines a torch on the rough wall. The rough wall becomes visible. There is no clear image. देखो कहता है ये एक दीवार है और एक बच्चा इसके ऊपर जब टॉर्च से लाइट थ्रो करता है, जब टॉर्च से लाइट थ्रो करता है, what he observes that from the torch when light is thrown the person is able to see the wall. इस दीवार में इस लड़के को अपना फोटो नहीं दिखता। He is unable to see his image. He can only see the wall. You know why wall? Why so? Because wall is a rough surface. When there is a rough surface, then parallel beam of light goes and it gets scattered into different directions, and only a very small portion of the light enters back to the eyes of the observer. When very small light enters due to diffused reflection, small portion of light enters. जब स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट एंटर करता है तब हमें ऑब्जेक्ट का वॉल सिर्फ दिखाई देगी। देन वॉल इज ओनली व्यूड विजिबल टू द आई। इसमें इमेज नहीं दिखेगा बिकॉज वॉल इज नॉट ए स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस। ओके, रफ सरफेस पे कौन सा रिफ्लेक्शन होता है बेटे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जब भी होएगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जब भी होएगा उससे ऑब्जेक्ट सिर्फ दिखेंगे हमें, या हम उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, हम कभी भी उसमें इमेज नहीं देख सकते। याद रखना, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन से कभी भी हम नेवर नेवर इमेज नहीं देख सकते। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस का रफ होना जरूरी है। When the surface will be rough, reflection will be diffused, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन आएगी। देन इमेज कैन नेवर बी सीन, सिर्फ हमें दिखाई देगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू एनिमल्स विद ग्लॉसी फर appear shiny and animals with rough fur do not? कह रहा है जो एनिमल्स होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एनिमल्स उनमें जो जिनका चमकदार ग्लोसी फर है, जिसका अगर उसके ऊपर लाइट पड़ती है बेटे, लाइट पड़ती है तो वो हमें शाइन करते हैं। ऐसा क्यों? जब उसके ऊपर लाइट इज इंसिडेंट, तो आपने बोलना है when light is incident on the glossy fur of animals। ग्लॉसी फर बोल कौन सा? टाइगर। और कौन सा? कैट। ओके, जब इन एनिमल्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये में काफी ज्यादा पार्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट करती है। ये जो लाइट है ज्यादा पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्शन लाइट कंटेंट इज मोर, ज्यादा पोर्शन लाइट का रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, इसीलिए हमें ये शाइनिंग स्किन दिखती है। अगर ये उनका ग्लॉसी की बजाय रफ फर होता है, इफ रफ खुरदरा होता उनका, तब वो इतना ज्यादा शाइन नहीं करेंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन कंटेंट कम हो जाएगा। राइट, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। जिन बच्चों को 3rd और 4th क्वेश्चन के आंसर समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर हैंड and give the indication to the teacher. Shabash, 8th C students, I am asking you, in case you have understood both, please give the indication by raising your hand. Okay.
ये थे हमारे बेटे और क्वेश्चन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, he says incident light strikes against the mirror perpendicularly. This is your incident ray. It strikes against the mirror perpendicularly. Remember, bete, whenever in the examination this word is written perpendicularly, that means the incident ray is vertical and the mirror is horizontal. Always remember, mirror is horizontal and incident ray is vertical. This is only possible only when it is incident perpendicularly on the mirror. Okay. Now, if question asked from us, what is the angle of incidence? Okay. This is your question. तो सभी बच्चे बोलेंगे, ध्यान से सुनना, सर आपको याद है आपने हमें कराया था, if this is the mirror, this is your normal making 90 degree angle normal, and this is your incident ray of light, then whatever this incident ray of light makes the angle with the normal, that is called angle of incidence. लेकिन अब आप प्रेजेंट क्वेश्चन में कह रहे हो कि ये जो लाइट है आपकी वो वर्टिकली गिर रही है। इसका मतलब अगर आप सोर्स ऑफ लाइट को यहां से स्लिप करके यहां ले जाओगे तब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा। इन केस यू स्लिप द सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम हियर टू हियर और ज्यादा नॉर्मल के नजदीक ले जाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाएगा। अगर आप सोर्स ऑफ लाइट को और भी ज्यादा नजदीक ले जाओगे, यहां ले जाओगे रेड पोजीशन पर, तो इंसिडेंट रे इधर से जाएगी यहां पर पी पॉइंट पर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी कम हो जाएगा। लेकिन जब आप बिल्कुल परपेंडिकुलरली रख दोगे, यहां से ही सोर्स ऑफ लाइट आएगा, तो इसका मतलब लाइट इज फॉलिंग ऑन द डायरेक्शन थ्रू द येलो लाइट, येलो लाइन, नॉर्मल के ऊपर से ही लाइट आ रही है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होते 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 0 डिग्री ही हो गया। ठीक है, 0 डिग्री, क्योंकि जिस लाइन के साथ नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने एंगल बनाना होता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। बट हम क्या देखते हैं कि इंसिडेंट रे खुद ही नॉर्मल की डायरेक्शन में आ गई। इसका मतलब नॉर्मल भी वही लाइन है और इंसिडेंट रे भी वही लाइन है। नॉर्मल भी वही लाइन, इंसिडेंट रे भी वही लाइन, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी कि कोइंसाइड करगी। जब कोइंसाइड करेंगी तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इंसिडेंट रे स्ट्राइक द प्लेन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे? क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है दिस इज योर मिरर और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है पी पॉइंट, और ही सेज पी पॉइंट के ऊपर आप नॉर्मल ड्रा करो, दिस इज अवर नॉर्मल, एंड इन द क्वेश्चन ही सेज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। So let me draw the angle as 37 degree. This is your incident ray. Light is coming from the source of light. It is making angle 37 degree. So naturally, angle of incidence is 37 given to us. So this will be the reflected ray. Everybody knows this is your angle of reflection. You know what is asked in the examination? In the question, he asked, what is this total angle? Total angle. This angle between incident ray and reflected ray. So everybody will say, sir, if you call this angle is, say this angle is theta, so you will say theta angle is equal to angle of incidence plus angle of reflection. But also you know angle of reflection can be written to angle of incidence. So in the next step, sir, you should write angle of incidence plus angle of incidence. You have put the value of r here.
So angle theta becomes twice of angle of incidence. But angle of incidence is given to us 37 degree. So 2 into 37. So your answer becomes this 74 degree. This is your question number 6. जिन बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं वो अपने टीचर को फीडबैक देंगे बाय रेजिंग योर राइट हैंड. हैव यू रियली अंडरस्टूड? प्लीज गिव द फीडबैक बेटे. आई एम आस्किंग 8th C पर्टिकुलरली. 8th C. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. और हम जल्द से जल्द आगे बढ़ते हैं. जहां पर मेरे को लगेगा कि आपके मोर बेसिक्स चाहिए मैं इसको रोकूंगा और आपको नए बेसिक बताऊंगा. लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्या? हाँ, इसके लिए अब मैं अपने बच्चों को पहले एक एक्टिविटी समझाऊंगा. शाबाश. सभी बच्चे मेरे एक्सपेरिमेंट टेबल पे आएंगे. एक्सपेरिमेंट टेबल पे आएंगे और देखो मैं अभी आपको सेटल करता हूँ. सभी बच्चों को अच्छे से दिखाऊंगा. डोंट वरी. रिमोट सभी बच्चे मेरे टेबल पर देखिए. मैं फोकस कर रहा हूँ. योर अटेंशन. सो बेटे मैंने अपना ये मिरर रखा. ओके. सो दिस ह्यूमन बॉडी टॉय, जो ह्यूमन बॉडी टॉय है दैट इज सर्विंग एज द ऑब्जेक्ट हियर. ऑब्जेक्ट. तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख रहा हूं. ये ह्यूमन बॉडी का ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया. देखो ये देखो. ओके. सो ऑल ऑफ यू आर ऑब्जर्विंग. नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू यू. दिस इज योर ऑब्जेक्ट. दिस इज द प्लेन सरफेस एज मिरर and in the mirror you are seeing the image. अब मैं आपको बताना चाहूंगा वो जो मिरर के अंदर इमेज है उसके फीचर्स क्या क्या हैं. अगर मैं यहाँ फ्रंट से आकर देखता हूं तो मेरे को ऐसा लगता है मिरर की बैक साइड पर इमेज है. जैसे ही मैं वापस जाकर मिरर की बैक साइड पर देखता हूं मेरे को कुछ दिखता नहीं है. वहां कुछ है ही नहीं. और फ्रंट से आके देखता हूं तो यस दिखता है. इसका मतलब दैट इमेज ओनली अपीयर्स. बैक साइड पे कुछ भी नहीं है. ऐसे इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं. वर्चुअल, जिसको हाथ से टच ना किया जा सके. मेरी कोशिश है कि मैं उस इमेज को जाकर टच करता हूं मिरर की बैक साइड पर. एज सुन एज आई गो टू द बैक साइड ऑफ द मिरर व्हाट आई ऑब्जर्व देयर इज नथिंग. सो सच ए इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल. VIRTUAL. सेकेंड पॉइंट. आप ध्यान से जितना इस इमेज का हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, उतना ही मिरर के अंदर इमेज का हाइट है. सो व्हेन देयर इज ए प्लेन मिरर, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज आर इक्वल. दोनों बराबर के साइज के हैं. अगर इसका हाइट 12 सेंटीमीटर है तो इमेज का हाइट जो मिरर के अंदर है वो भी 12 सेंटीमीटर. थर्ड पॉइंट. ऑब्जेक्ट का इमेज से जितना दूरी है, डिस्टेंस है, जितना दूरी है उतना ही मिरर से इमेज का दूरी होता है. मतलब अगर ये ह्यूमन टॉय मैंने मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा करा हुआ है, देन रिमेंबर मिरर से उसके अंदर दिखने वाला इमेज भी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होता है. यानी फ्रॉम द प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंट. इक्वल प्लस डिस्टेंस दोनों को मिलाकर एक वर्ड बनता है इक्वी डिस्टेंट. एक और चीज देखो, बहुत ही स्पेशल बात बेटे. वो कौन सी? अगर मैं आपसे टॉय से पूछूं, ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से करता हूं. लो, इस ह्यूमन टॉय में मैं अपने बच्चे से पूछता हूं, इस ह्यूमन टॉय ने आपने अपना कौन सा हैंड ऊपर उठा रखा है, लेफ्ट या राइट? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर उसने अपना लेफ्ट हैंड ऊंचा उठा रखा है. जबकि इसके इमेज में देखो,
ऑब्जेक्ट ने कौन सा हैंड उठा रखा है, लेफ्ट, जबकि इमेज ने कौन सा हैंड उठा रखा है, राइट। ठीक है, तो लेफ्ट का राइट बन जाता होता है और राइट का लेफ्ट बन जाता होता है। लेफ्ट साइड राइट, जो इमेज की लेफ्ट बनेगी वो जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट होगी वो इमेज की राइट बन जाएगी अंदर जाके। इस तरह से साइड चेंज हो जाना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अब हम इस थ्योरी को बोर्ड पर करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन करेंगे। फोकस ऑन द बोर्ड, सो फोकस ऑन द बोर्ड। दिस इज योर मिरर, दिस इज योर मिरर बेटे, एंड टीचर Board is not visible. ओके ओके, control the image. Look here, this is your mirror and this is your object, and remember there will be the virtual image inside the mirror, virtual image. ओके बेटे, तो ये वर्चुअल इमेज में टीचर आपको दिखा रहा है, गौर से देखो। So one thing, number one, what are the features? Listen very attentively. Number one, if this distance is u from the mirror and image distance is v, suppose karo u and v, let me tell you, u will be equal to v because object will be as much away as the image from the mirror, equidistant, equidistant. Okay, second point, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, in case I see its size, this size is O, यहां से यहां तक, O is written in the square bracket, it is known as object size, and I is written in the square bracket, it is called as image size. So second learning point is object size is equal to image size. For the better clarification, you can write here size. So you can say both are equal sized. Equal sized. Third point, beta, third point. You cannot touch this image. So remember, image can be seen only. Image can be seen. So this is your virtual image. Virtual image. कोई बच्चा बोलता है सर मान लो कोई और अलग केस है, प्लेन मिरर नहीं है, कहीं और है, दूसरी किसी एक्टिविटी में, वहां हम इस इमेज को टच कर सकते होते तो क्या लिखते, तब हम इसको अगर टच कर सकते होते तो रियल इमेज लिखते, पर अब हम मिरर की बैक साइड पर जाकर देख रहे थे, वी वर अनएबल टू टच इट, इसलिए रियल नहीं लिखेंगे, वर्चुअल लिखेंगे। और एक बात, खास पॉइंट, शाबाश, सभी बच्चे नोट करेंगे कि ऑब्जेक्ट ने अपना लेफ्ट हैंड रेज करा हुआ है, जबकि इमेज ने अपना राइट हैंड रेज करा हुआ है ना बेटे। तो याद रखना, लेफ्ट का राइट बन जाना और राइट का लेफ्ट बन जाना, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, सभी बच्चे इस वर्ड को याद करेंगे, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ये वर्ड कहां से आया है, इंग्लिश का ये वर्ड कहां से है, रिमेंबर, लेटरल मींस साइड वाइज, लेटरल मींस साइड वाइज, लेफ्ट साइड राइट बन जाता है, राइट साइड लेफ्ट बनेगा। और इन्वर्जन वर्ड इंग्लिश के वर्ब इन्वर्ट से आया, इन्वर्ट, पलट देना। ठीक है, ये देखो, अगर मेरे को कोई बोले सर इस पेपर को इन्वर्ट कर दो, तो मैं इस पेपर को ऐसे कर दूंगा, इन्वर्ट, पलट देना, लेफ्ट का राइट कर दिया, राइट का लेफ्ट, इन्वर्ट से इन्होंने नाउन बना लिया इन्वर्जन। जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गए, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश, बहुत अच्छी फीडबैक है। अब मैं अगर अपने बच्चों को 7th क्वेश्चन पढ़ता हूं,
7th क्वेश्चन में वो बोलता है द बॉय इज स्टैंडिंग फ्रॉम द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन ना 2.5 मीटर. So what is the distance between the boy and its image? वो हमसे पूछता है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जिसको टीचर येलो कलर से बता रहे हैं. टोटल डिस्टेंस डी कितना होगा. तो इंटेलिजेंट बच्चा समझ लेगा सर डी को निकालने के लिए यू और वी को ऐड करना पड़ेगा. तो जैसे ही वो यू और वी को ऐड करेगा तो वो बच्चा लगेगा सर यू की वैल्यू तो आपको पता है 2.5 मीटर. इंटेलिजेंट बच्चा बोलेगा सर वी भी तो उतना ही होता है, इक्वी डिस्टेंट होते हैं, तो वी को भी आप 2.5 पुट कर सकते हो. इसलिए आपके डी का आंसर 2.5 प्लस 2.5 5 मीटर आएगा. दोनों को ऐड कर देंगे. जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड बेटे, टीचर को फीडबैक जरूरी होती है, बहुत दूर हूं मैं आपसे. वेरी गुड, वेरी गुड. Let's move to the question number 8. Question number 8. इसको हम मेमोरी में डाल लेते हैं. A torch is kept at angle 30 degree incidence to the flat mirror. Okay. What is the angle between normal and reflected ray? ध्यान से सुनना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. कहता ये मिरर है. क्वेश्चन नंबर 8 बेटे, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है. वो बोलता है ये मिरर है. हमने कहा सर ओके. कहता है ए टॉर्च इज केप्ट एट 30 डिग्री इंसिडेंस टू द फ्लैट मिरर. कह रहा है ये जो फ्लैट मिरर है ना, यहां से इस बच्चे ने जो अपनी टॉर्च जलाई है, वहां से जो लाइट आ रही है टॉर्च से, वो लाइट मिरर के साथ बोल रहा है 30 डिग्री एंगल बना रही है. पॉइंट ऑफ व्यू मिरर के साथ बना रही है. ओके. और नाउ वो कह रहा है यहां पर आपने नॉर्मल ड्रा करा, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे इधर चलेगी. रिफ्लेक्टेड रे ये क्या था बेटे, इंसिडेंट रे. और आपसे पूछता है व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे पूछता है. ठीक है. इंटेलिजेंट बच्चा एकदम से समझ जाएगा कि अगर इंसिडेंट रे मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द मिरर, तो ये एंगल ऑफ ग्लास दिया हुआ है, ग्लास. और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है. तो बच्चा एकदम से चेक करेगा कि मेरे टीचर ने सिखाया था एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लास 90 डिग्री होते हैं. ग्लास एंगल हमें 30 डिग्री दिया रखा है. ग्लासिंग एंगल की वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आसानी से आ जाएगी 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री. क्योंकि 30 डिग्री उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा राइट साइड पर, साइन चेंज हो जाता है, बेसिक मैथ. और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो गया, सभी बच्चे बोलेंगे सर आपने सिखाया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होते. तो क्योंकि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 60 डिग्री निकाला, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री आ जाएगा. जिन बच्चों को यह क्वेश्चन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड. बेटे 8th सी के बच्चे जवाब क्यों नहीं देते अच्छे से. ओके, गुड जॉब. क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे बच्चों को समझ आ गया. क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. यस. क्वेश्चन नंबर 9 से पहले मेरे को अपने बच्चों को एक्टिविटी उठानी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 9 से पहले टेबल पे दोबारा फोकस करो, मेरे एक्सपेरिमेंटल टेबल के ऊपर. सभी बच्चे सभी बच्चे मेरे एक्सपेरिमेंट टेबल के ऊपर देखो बेटे. मेरे पास क्या है प्रेजेंटली, मेरे पास एक प्लेन मिरर है. गौर से देखो, प्लेन मिरर. मैंने इस प्लेन मिरर को यहां रख दिया, राइट. और एक दूसरा प्लेन मिरर है, राइट.
इस प्लेन मिरर को भी मैंने यहाँ पे रखा, राइट। इन दोनों मिरर्स को मैं रखता हूं, वेट ए मिनट बेटे, फिर से करता हूं। ये मैंने दोनों स्पोर्ट दे दी है दोनों, ये एक मिरर रखा और ये दूसरा मिरर रखा। फोकस करो इसको, चलो हाथ से ही पकड़ लेता हूं। ये देखो, ये दोनों मिरर मैंने रखे ऐसे, दे आर इंक्लाइंड एट ए पर्टिकुलर एंगल। सभी बच्चे देख रहे हैं बेटे, these two mirrors are inclined with respect to each other at a particular angle। अब दोनों इंक्लाइंड मिरर के अंदर कुछ ना कुछ एंगल होगा, मान लीजिए वो एंगल थीटा है, और मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेजेस दिख रहे हैं आपको, देखो इसमें दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, और दिखाऊं, इस एंगल को चेंज करूंगा तो देखो आपको कितने सारे इमेज दिखते हैं, एक इधर इधर, और एंगल चेंज करूंगा तो और ज्यादा इमेज दिखेंगे। जैसे ही मैं इंक्लाइंड मिरर्स में एंगल चेंज करता हूं तो व्हाइट कलर वाले ऑब्जेक्ट के इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस दिखते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये कितने इमेज दिखते हैं और इनका क्या फार्मूला है, इसको हम बोर्ड के ऊपर स्टडी करते हैं। सभी बच्चे बोर्ड पर देखो, शाबाश, एवरीबॉडी विल लुक एट द बोर्ड। देखो बेटे, लिसन केयरफुली। मान लीजिए मेरे पास एक इंक्लाइंड मिरर ऐसे है, दिस इज योर मिरर नंबर 1, एंड दूसरा मिरर ये है M2। दोनों के रिफ्लेक्टिंग फेसेस, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस आर फेसिंग ईच अदर, ओके। बच्चा कहता है सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं बताना चाहूंगा, ये जो मिरर होता है देखो, एक तरफ से रिफ्लेक्टिंग है, एक तरफ से नॉन रिफ्लेक्टिंग। तो जो नॉन रिफ्लेक्टिंग है, पॉलिश्ड वाला सरफेस, वो बाहर को है, और ये भी बाहर को, दोनों के शाइनिंग सरफेसेस ईच अदर कर रहे हैं, फेसिंग ईच अदर, और दोनों का ये जो एंगल है थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन जो वर्ड है वो इंग्लिश के वर्ब इनक्लाइन से लिया गया बेटे, इनक्लाइन से। इनक्लाइन का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा करना, ओके। अब अगर हम यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, योर सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट, सो इसका इमेज इधर भी जाएगा, इसका इमेज इधर भी जाएगा, उस इमेज का भी इधर फोटो आएगा, और जो इसका इमेज इधर आया था उसका भी इधर फोटो आएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ आया मैं दोबारा से बताता हूँ। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज I1 यहां बन गया, और इसके अंदर भी इमेज बन गया I2, ठीक है। ये जो I2 इमेज बन गया, I2, उसका भी फोटो इधर आएगा। मान लीजिए वो I2 डैश है, और ये जो I1 बन गया उसका फोटो भी इस इमेज में आएगा। मान लीजिए यहां पर I1, इसी तरह से ये चलता रहेगा, और मल्टीपल इमेजेस विल बी सीन। इमेज का भी इमेज, इमेज का भी इमेज, मल्टीपल इमेजेस विल बी सीन। हम सिर्फ उन इमेजेस को देखेंगे जो कंप्लीट इमेजेस हैं, कंप्लीट इमेज को काउंट करेंगे। कोई बच्चा कहता है सर कंप्लीट का क्या मतलब, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया था, अगर इस कैप का पूरा इमेज दिखता है, ये चौक का, तभी काउंट करेंगे। अगर वो आधा कटा हुआ दिखता है इमेज, उसको नहीं काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ कंप्लीट इमेजेस को अगर हम n की काउंटिंग दे दें, तो हमारा आंसर, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट इमेजेस। तो सभी बच्चे उसका फार्मूला सुन लो, टीचर से लिखने लगा, नंबर ऑफ कंप्लीट इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री
divided by this angle theta -1। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मैंने इस एंगल को किसी क्वेश्चन में आपको 60 डिग्री दिया, 60 डिग्री दिया, तो आप नंबर ऑफ इमेजेस निकालना चाहते हो, तो आप 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री -1। So in the next step 6 minus 1, in the next step 5 is the answer। 5 number of complete images दिखेंगे। अगर 6th इमेज दिखेगा तो वो आधा कटा हुआ दिखेगा, उसको नहीं हमने काउंट करना, सिर्फ कंप्लीट इमेज को काउंट करना। इसी तरह कोई बच्चा बोले सर मान लीजिए ये थीटा 90 डिग्री होता, तो मैं उसको बोलता दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 लिखेंगे यहाँ पर -1, तो 4 - 1, 3 इमेजेस दिखेंगे। उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को ये नंबर ऑफ इमेजेस वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया विद एग्जांपल। जिनको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, शाबाश। अब हम इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं। योर क्वेश्चन देखो बेटे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने दिखेंगे जब 60 डिग्री है। इस क्वेश्चन में भी 60 डिग्री है, क्वेश्चन 9 में थीटा इज गिवन है 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये हमारा 5 आंसर आ ही चुका। ओके, सेकंड क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में बाय चांस उसने थीटा को 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री से भी टीचर ने सॉल्व करवा दिया, 3 इमेजेस आएंगे। ठीक है, अब आप सॉल्व करके बताओ इफ दिस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री होगा तो कितने इमेज आएंगे, जल्दी सॉल्व करो। 11। बहुत अच्छे, एक बच्चे ने 8th बी के बच्चे ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। वो कहता है अगर सर 30 डिग्री होगा तो 11 इमेजेस होंगे आपके। 360 डिवाइडेड बाय 30 -1, 12 -1, 11 इमेजेस, वेरी गुड। इस तरह से हमने, और अगर दोनों इमेजेस पैरेलल होंगे, एक मिरर के सामने दूसरा मिरर रख देंगे, बिल्कुल सामने सामने, तब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, और उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट। क्यों, जब 0 डिग्री 0 से डिवाइड करेंगे 360 को, तो आंसर बिकम्स इनफाइनाइट। तो ऐसे बनेगा 360 डिवाइडेड बाय 0 -1, यानी एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी -1 स्टिल रिमेन्स इन्फिनिटी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। इस तरह से हमने 12 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए फर्स्ट से लेकर, और एक्टिविटीज भी कर ली, और बाकी क्वेश्चन आप बाद में खुद करोगे। अभी आपका मैथ का लेक्चर शुरू कर, ठीक है बेटे, शाबाश।